कृष्णकांत संधि के ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं को दुख से पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि हर एक क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अध्ययन की सुव्यवस्था दी जा रही है। साथ ही बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं की सुचारू भविष्य निधि का भी गठन किया जा रहा है। कृष्णकांत संधि के क्षेत्र के महिला महाविद्यालय में शाखा खोला गया है। इस शाखा में बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा दाखिला ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खुद को उजागर कर पा रहे हैं। कई सुविधाएं इस क्षेत्र में दिया जा रहा है और प्रावधान भी है। कुछ नए परियोजनाओं का भी इस अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर घोष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। नमस्कार, प्रथमेই আমি অমর ঘোষ, শিলচর আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তা। আমার কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে এই সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত জানাই। তো আমাদের যে কথাটি আপনি বললেন যে আমাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা মূলত আপনাদের জন্যই এবং আমাদের ইউনিভার্সিটির সকল কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টার ফল। আর আজকের আমাদের যে সংবাদ সম্মেলন, সেটার মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আমাদের জুলাই 2026 শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেই ভর্তি প্রক্রিয়াতে কিছু আমাদের সুখবর আছে, সেটা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বরাক উপত্যকার সকল আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে আমরা জানাতে চাই। তো প্রথমত আপনারা সবাই জানেন যে 2005 সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম এবং একমাত্র রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যেটির মূল লক্ষ্য হলো গিয়ে সমস্ত বাধাকে পেরিয়ে শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়া। আর সেই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 2026-এর জুলাই সেশনের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং তা আগামী 31 আগস্ট পর্যন্ত চলবে। তো আপনাদের জানাতে পেরে আমি সুখী হচ্ছি বা আনন্দের সাথে আপনাদেরকে এটা জানাচ্ছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই সেশন থেকে নতুন করে আরও 3টি স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করেছে। সেগুলি হলো এমএসসি ফিজিক্স, এমএসসি কেমিস্ট্রি এবং মাস্টার অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স। তার সাথে আরও একটি নতুন আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামও শুরু করা হয়েছে, সেটি হলো বিএসসি ইন ম্যাথামেটিক্স। এখানে উল্লেখ্য যে গত জুলাই সেশনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বরাক উপত্যকার কথা মাথায় রেখে মাস্টার্স ইন বেঙ্গলি শুরু করেছে, যেটার জন্য মূলত আমাদের বরাক উপত্যকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনেক দিনের আশা ছিল, সেটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করেছে। তার সাথেও বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 21টি পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, 13টি আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট প্রোগ্রামস রয়েছে। আমাদের বরাক উপত্যকায় 3টি জেলার প্রায় সবকটি সরকারি এবং প্রাদেশিকত মহাবিদ্যালয়গুলোতে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। আমি আমাদের বরাকভ্যালির আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বলবো যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পোর্টাল kkehsu.ac.in লগ ইন করে ওনাদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া পুরোটাই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্সগুলো আমরা দেই সেগুলো ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এবং ডিস্টেন্স এডুকেশন ব্যুরোর দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত। তাই আমি আবারও আমার এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বরাকবাসীকে জানাতে চাই, যারা বিভিন্ন কারণে পড়াশোনা নিয়মিত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারছেন না, কিন্তু আপনাদের আশা আছে যে আপনারা উচ্চশিক্ষা করতে চান, আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগদান করুন এবং আপনাদের উচ্চশিক্ষার যে আশা সেটা পূরণ। হ্যাঁ, আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন পার্সেন্টেজ বার, সেটা হলো কি আমাদের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে বড় সুবিধা, আমাদের কাছে কোনো লার্নারের পার্সেন্টেজ সীমাবদ্ধতা নয়। আমরা যে কোনো পার্সেন্টেজের লার্নারকে, যে কোনো পার্সেন্টেজের শিক্ষার্থীকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভর্তি দিতে পারি। সেখানে কোনো ধরনের পার্সেন্টেজ বার নেই, কোনো ধরনের এইজ বার নেই, বয়সের কোনো সীমা নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ, যে কোনো পার্সেন্টেজের মানুষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। कछाड़ पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सोनाई विधानसभा केंद्र के मोतीनगर इलाके से 3 ड्रग्स माफियाओं को धर दबोचा। इनके पास से लगभग 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स व याबा टेबलेट जब्त किए गए। सूत्र के अनुसार लगभग 27 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट व 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स 3 व्यक्तियों के पास से जब्त किया गया। तीनों को कानूनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन के खुफिया सूचना के आधार पर यह तीनों आरोपी मणिपुर से होते हुए भुवन पहाड़ चढ़कर मोतीनगर पहुंचे और जहां पर पुलिस प्रशासन के पहले सूचना के आधार पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके बैग से बड़े पैमाने पर नशीले सामान जब्त किए गए। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है। पुलिस प्रशासन की सफलता के चलते ड्रग्स माफियाओं के व्यापार पर एक बार फिर से पाबंदी लग गई है।
स्टार्ट सर। ओबिजन चला, क्या क्या मिला है? तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कचरा पुलिस हमेशा ही ड्रग्स के अगेंस्ट अभियान चल ही रहा है। तो एक अभियान, एक ऑपरेशन, एक मिशन लॉन्च हुआ था 38 असम राइफल्स के साथ, जिनमें भुवन हिल्स का फुट हिल्स में लखीपुर पीएस के लखीपुर पीएस के अंदर में। तो वहाँ पे हम लोग को 3 लड़के मिले अराउंड 12:30 को। 3 लड़के, उनका एक का नाम है मायाजुल हक, एक स्टेलमोन और एक नूर हुसैन। तीनों ही कचूदरम के बासिंदा है। तो उनको से हर एक के पास एक एक बैकपैक था। सो बैकपैक हम लोग जब उनको चेकिंग करवाने में हम लोग को वहाँ से मिले 1,10,000 याबा टेबलेट्स और 10 सोप केस, जिसमें सस्पेक्टेड हीरोइन है 223 ग्राम्स। अकॉर्डिंगली हम लोग ने सीजर किया, जो हम लोग का प्रोसीड्योर है। एक केस रजिस्टर हुआ है और अकॉर्डिंगली वो अरेस्ट हुए हैं। और ये जो सामान मिला है 1,10,000 याबा टेबलेट्स और हीरोइन 223 ग्राम, तो इनका लगभग मार्केट का वैल्यू है 28 करोड़ रुपए। सो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग मणिपुर से आए हैं। ये जो भुवन हिल्स है वो पहाड़ चढ़ के वो लोग पार करके आए हैं, वहाँ पर ही हम लोग ने उनको पकड़ा है। तो इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, जो है कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते थे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस रजिस्टर हुआ है NDPS एक्ट के अंतर्गत। वो लोग अरेस्ट होंगे और फर्दर क्या है इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन में मिला जाएगा। याबा टेबलेट का कॉस्ट क्या है, हीरोइन का कॉस्ट क्या है? याबा टेबलेट का कॉस्ट है 27 करोड़ और हीरोइन का 1 करोड़, तो कुल मिला के 28 करोड़। लायंस क्लब ऑफ सिल्चर वैली व्यू के उद्योग से तथा NDRF के प्रयास के चलते, सहयोगिता के चलते गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में NCC यूनिट के सहयोग से एक दुर्योग सचेतनता मूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NCC के CTO शहीदुल चौधरी, लायंस क्लब सिल्चर वैली व्यू के सभापति संजीव राय तथा दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने अनुभवों का बखान किया और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किए जाने पर कुछ व्यक्तियां सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार देव NDRF के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ दलीय सदस्यों की गतिविधियों पर भी आलोकपात किया। दुर्योग के दौरान किस तरीके से दुर्योग से निपटा जाए, इस संदर्भ में भी विस्तारित तौर पर छात्र छात्राओं को जानकारी भी प्रदान किए गए। And taken into consideration, since this is summer and the climate is very humid, okay? Organization है dealing with disasters, okay? इस तरह से उड़ीसा का शेड्यूल हुआ है, हुआ है, उत्तराखंड में आर्टबुक हुआ है, उसमें क्या है 158 people were being killed. बहुत ज़्यादा क्या है casualty था, armies they were brought in for search and rescue operation during that time. फिर उससे में क्या है coordination का search and rescue अगर कोई हुए not good, कोई calamities हुआ है, कोई disaster हुआ है, तो उस टाइम में प्रोफेशनली सर्च एंड रेस्क्यू इवैक्यूएशन को कैरी करने के लिए है ना, और इसका बाद में क्या है रिलीफ मेथड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए व्हाटएवर डिजास्टर का रिलेटेड एक इसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और जो हम लोग NDRF बटालियन करेक्शन जो हम लोग बिलोंग करता है फर्स्ट बटालियन NDRF, जो 4 स्टेट को लुक आफ्टर करता है, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम है, त्रिपुरा हो गया, और नेचुरल डिजास्टर इस 4 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आ जाएंगे। फिर केमिकल स्पेलेज हो गया है, तो कोई भी सिचुएशन में वी आर वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। एसओसी ने तो एसओ नबाब आप इसी करना चाहे फिर आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा फर्स्ट, ओके? ग्रेजुएट करके डिफरेंट UPSC एग्जाम देंगे, ऑफिसर लेवल में भी होगा, ठीक है? एसओस लेवल में जो होंगे तो आप ग्रेजुएट करके SSC एग्जाम देंगे, ठीक है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ NDRF के आए हुए कार्यरत अफसर है इंस्पेक्टर इनाम के और SI दिनेश कुमार जी, साथ पूरे NDRF टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करता हूँ कि लायंस क्लब के साथ लगभग हर महीने हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम लोग गांव देहात में, शहर में, चाय बगानों में जाके कार्यक्रम किए हैं।
हमें लगता है कि जब लायंस क्लब एनडीआरएफ से जुड़ा नहीं था तो हम लोग को भी बहुत कुछ पता नहीं था। जैसे कहते हैं ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब कोई डिजास्टर हो उस वक्त हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमको अच्छी तरह से जानना होगा। तो पिछले कार्यक्रमों में हम लोग इकट्ठे हम लोग को बहुत कुछ पता चला। धीरे धीरे हम लोग भी अब और दूसरे जगह पे जाके लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आपको भूकंप के दौरान, आग के दौरान, बाढ़ के दौरान और बहुत से कैलामिटीज है, डिजास्टर है जो नेचुरल और अननेचुरल है, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लायंस क्लब सिस्टर वैली व्यू के तरफ से एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद, साथ ही गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं। आप लोग आगे बढ़कर नहीं आते तो आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर पाते। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছে, এনডিআরএফ এর অথরিটি এগিয়ে এসেছে, লায়ন্স ক্লাব যৌথভাবে এগিয়ে এসেছে বলেই আজকে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে পারছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা মন দিয়ে শুনবেন ওরা কি দেখাচ্ছেন, কি শোনাচ্ছেন এবং কি বোঝাচ্ছেন। सर लोग जो बताएंगे, एनडीआरएफ टीम जो बताएगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग यहाँ पे हैं, आपके घर परिवार आपके वहाँ बैठे हुए हैं बाहर में, आप जो जानेंगे, आप जो सुनेंगे और आप जो सीखेंगे, आप जाके अपने घर परिवार सभी को बताएंगे, भाई बहन मित्रों पड़ोसी को बताएंगे, तभी आज का जो कार्यक्रम है ये सफल होगा। मैं सबको फिर से यही गुजारिश करूंगा, 1 घंटा का कार्यक्रम है, आप लोग का समय दीजिए, मन से सुनिए, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई भयानक हादसा आने वाला हो तो कैसे बचा जाए ये एनडीआरएफ लोग सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी चाहूंगा इंस्पेक्टर न हो तो डीएसपी को वो दो सबक रखे और अपना कार्यक्रम को आगे हेलो चेक वो साथ है वो कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं था समझ गया। देखा ये जो मामला आउटपुट आ गया है ना, ये क्या है, ये आप लोग किसी बात को क्लासरूम में था, फिर क्लास में आप लोग से किसी का है अचानक क्या है फिर आपको गाना देखना है, ठीक है। इसका बात क्या है, कवर मतलब है ना, क्लास हो गया, अदर डोज मटेरियल्स कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट आपको वाइटल ऑर्गन को ग्राउंड क्या है टेबल का अंदर या ब्रेक या कुछ भी मटेरियल्स हो, आपको वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वो 50 स्टूडेंट में सिर्फ 40 ही बाकी 10 को जो होता है ना, फेल हो जाएंगे, आपको मालूम ये एक आपका स्टूडेंट है, आपका जो क्लासमेट है, आपका आपको क्या करना चाहिए और से लिविंग कार्बन होना चाहिए, जहाँ भी जो है इस प्रकार क्या करना है, आपने डायरेक्ट प्रेशर पे ट्राई करना है। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का क्या साइंस क्या है, जैसे हम लोग का सिस्टम है प्लान, आप ठीक है। अगर बाय द वे 6 मिनट है आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने का बात ये प्रेशर होगा, फिर आप क्या है दूसरा टेक्निक करता है तो आ गया है प्रेशर होता है। समाचारों में एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক
আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরো সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।